called white heat. कि हीट की द मैक्सिमम जो हीट की जो लिमिट है वाइट हीट, तो सो द फिल्म इज वाइट हीट. हम वाइट हीट के बारे में क्यों बात करें? गॉडफादर isn't that a great film? I think Godfather Part 3 is the greatest film. Yeah, Part 3 was amazing. Yeah, पहले दो में कास्ट इतनी अच्छी नहीं थी मेरे ख्याल से. This was bullshit. Yeah, Part 3 was amazing. So no, we'll talk about White Heat. White Heat. कौन से साल की है? White Heat 1949, a landmark film in Mobster cinema, not just in Mobster cinema but in film noir genre. Or why is that? I think why not? I think White Heat has all the because Godfather elements. Of course ये ना कि कुछ वो क्या था अपना कभी खुशी कभी गम के सारे अमिताभ बच्चन भी है, शाहरुख खान भी है, रोशन भी है, सबको ले आओ. एल पचिनो, ब्रांडो, पिचिनो, डुवाल, कान, सबको ले आओ और ब्रांडो फिल्म बना ले. But that is not White Heat. White Heat is just about one character, but we'll talk about that later. Yeah. तो White Heat क्या? What is it about? White Heat, what is it about? White Heat की story बहुत simple है वैसे. The story is about a mobster and his journey through America in a way, and his downfall from. No, and a very badass mobster. Very badass mobster. His character is called Cody Jarrett. I think हमें वो फिल्म इतनी पसंद है कि हम लोगों को भी कोडी जैरेट बोलते हैं कि यार exactly है कोडी जैरेट, इससे बच के रहो ये कोडी की तरह है. और तो it's about Cody rise and fall of badass mobster Cody Jarrett. Basically that's the film. The plot of the film is okay. पहला सीन बताए ना, पहला सीन फिल्म का which is establishes pretty much. I think वो जो like why are we calling Cody Jarrett badass, वो तो आपको फिल्म देख के पता चलता है. But the first 2 minutes in the film you know he's a badass because of the first scene जिसमें कोई डायलॉग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बस वो कोडी जैरेट सिर्फ एक इशारा है और उस इशारे से आपको पता लग जाता है he means business. Yeah, don't mess with this guy. And automatically the director has shown कि जी जैसे ही उसका वो जो हैंड जेस्चर है that establishes that who's the boss. अभी फिल्म स्टार्ट हुई है, you don't know. पहला सीन है वो, but you already assume कि हाँ यार ये बॉस, man in charge. He's well dressed. ये भी नहीं कि कोई कुछ भी नहीं है, well dressed guy, और उसका बस भरम स्टैब्लिश हो गया है पहले 1 मिनट में ही फिल्म के. And that stays until the last second of the film. Exactly. वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. कैरेक्टर पे हम डिटेल में बात कर सकते हैं. आई थिंक वी कैन गो फॉर आवर्स टॉकिंग अबाउट कोडी जैरेट. राइज एंड फॉल ऑफ अ ग्रेट मॉबस्टर, एंड ऑफ कोर्स पुलिस इज ट्राइंग टू catch him because that is their job. That is what they do. And they वो अब बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी वगैरह अच्छा है, सब अच्छा है. कोई डिटेक्टिव का कैरेक्टर भी मुनासिब है, उससे ज्यादा मुनासिब जो स्पाई का दूसरा कैरेक्टर है उस पे अगर थोड़ा सा डिटेल में 2 मिनट दें प्लॉट को, तो बेसिकली Cody Jarrett's team of him and his stooges, basically pretty stupid stooges. हाँ, तो they rob this train. Head, Cotton. When we get the train on the spur, start hopping. Go. Jockey, you know what to do? Sure, Cody. First I throw the switch, and then I beat it back. All right, just do it. Stop the gabbing. And classical American thing 40s 50s में तो वो एक कॉमन वो था कि जी ट्रेन अटैक्स एंड robberies on the train because everything moved on the trains. And America is huge. तो वो वैसे ही ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट अगर कोई चीज जा रही है तो उसमें thousands of miles में बेशुमार डाकुओं की लॉटरी निकल सकती है. एक वानाबी डाकू भी लूट सकता है ट्रेन को. इतना बड़ा एटलीस्ट उसका एम्बिशन ये है कि यार मैं बड़ा होके ट्रेन लूटूं. बेसिकली उसका एम्बिशन ये है. और कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क जा रही है, इट्स लाइक 6 a week ट्रेन जर्नी. मोर आई थिंक प्रोबब्ली. और दरिया में सहरा भी है, हर चीज आ रही है, और वहां पे डाकुओं की वो ईद थी उस वक्त. और आज भी लाइक इट्स नॉट डेंसली पॉपुलेटेड, बट बैक देन तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था. आज भी लोग आपको नहीं मिलते शायद. अमेरिकन रोड ट्रिप की आप फिल्म्स देखें अगर, तो ट्रेन रॉबरी हो गई. And now the sheriff department is after Cody Jarrett and his team, and he runs from them basically. The sheriff department sends a spy to check. So what happens? Jarrett does a stretch in the penitentiary. Casey gets lonely, wants to talk to someone. We're gonna let one of our own boys do a stretch, right in the same cell. Still going fishing, Hank? Yeah. To befriend him, उसके close आ जाए ताकि सारे resources लगा दिए. सारे resources पुलिस ने लगाए हुए हैं. And basically that's the plot in a Jess KG क्या story है उसके बाद. वही है कि there is a great mobster and a very
मतलब प्रॉब्ली कम ही ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते होंगे मूवीज में. वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. मॉबस्टर, देयर इज दिस डिटेक्टिव, द पुलिस इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू कैच दैट गाय बिकॉज अगर आपने जो हम बात कर रहे थे गॉडफादर में आपने प्रोसिक्यूट करना है तो पूरा खानदान इन्वॉल्व है. सबको करना है. इन दिस फिल्म एंड द फिल्म्स लाइक दिस एक बंदे को आपने पकड़ लिया. That is it. The police is trying to catch that guy, and but of course that guy is वो इतना फुदू तो नहीं है. 3 steps ahead from everybody else. So the story is this cat and mouse chase और इस तरह. Basically. But lot more than that. So, कुछ scenes पे हम बात करें. Characters पे इसमें बात करते हैं फिर मजा आएगा. Characters पे I think when we talk about the characters, then we can also explore some scenes in the film. Cody Jarrett, one of the most, I think, उस जमाने की फिल्मों में that era, he has one of the most dynamic screen presence. Who played this role? Another very dynamic actor. Probably the most dynamic in that time. Yeah, Cagney. मतलब आप इस तरह कहेंगे कि of course Humphrey Bogart is the biggest star of that time, and Cagney was bigger than him. Yeah, James Cagney. James Cagney had done a lot of films before that. Had also is also an Oscar-winning actor. इस वक्त तक established था. Established था, बहुत बड़ा actor. Warner Brothers को sue करके जीत भी चुका था. हाँ, बहुत बड़ा actor था. And that has never happened. Yeah. एक ही बंदे ने किया. Production houses को आप तब भी नहीं कर सकते थे, आज भी नहीं कर सकते. Cagney was that kind of guy. Cagney was Leonardo of this time, I think. वो charming, हर किस्म का रोल भी कर रहा है. And you know उसकी जो presence है. Very powerful personality. Very powerful personality. और philanthropy में भी काफी मशहूर था. Personal life उसकी बहुत private थी. वो नहीं शेयर करना चाहता था कि पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है. Oscar winning actor, a great dancer. Dancer too, yeah. The movie which won. सबसे well known जो उसकी मूवी है. जो लोगों को पता है. That won an Oscar. It was musical. It was a musical where he actually he was a professional dancer. And then he actually ये भी बड़ी मजे की बात है कि एक तरफ आप you know you are doing chocolate romantic hero type films. And musicals, but then on the other side. लेकिन ज़्यादा famous वो शायद badass characters. क्योंकि इससे पहले भी वो 3-4 फिल्म्स में ये प्ले कर चुका था इस तरह का. हाँ क्योंकि उसमें anti-hero energy was exuding out of that guy. You know, probably not characters में नहीं, real life में भी he was very energetic kind of person. जैसे वो Al Pacino और larger than life personality. Larger than life. And you can see it on the screen as well. Exactly. Because एक ही character पूरी मूवी चला रहा है. तो फिर जब this film when जब उसको ये फिल्म मिली है तो उसने कहा कि यार कोडी जैरेट का कैरेक्टर जो है. हाँ, कोडी जैरेट का कैरेक्टर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग. जैसे हमने कहा कि you know the first 2 minutes of the film par excellence. 2 minutes of the film it has been established that he means business. और वो एंड तक रहता है. He is very intelligent. He knows what he wants to do, and he does not trust anyone. Not at all. No. ठीक है. He not his wife. Not his sidekicks. I told you to keep away from that radio. No, but he is ruthless in the way he conducts his business. He is not empathetic. वो कहता है कि यार I don't give a shit about anybody else. Yeah, he's probably a psycho. हाँ, तो वो he is not empathetic at all. Not empathetic at all, and you know he doesn't give a shit about anybody. And पूरी फिल्म का एक वो यही है कि doesn't trust anyone. That is, and the character is so strong, and other characters are so shallow compared to him. He is the driving force behind the film. They're probably purposefully हुए ना हो. Yeah, I think but purposefully script is like that कि दूसरे actors को इतना explore भी नहीं किया. और वो बड़ा अच्छा decision था दूसरों को. और I think वो यही था कि जेम्स कैग्नी की खासियत ही ये थी that he could अकेला कर सकता था. He steered the film in the right direction and 49 की फिल्म में 2021 आज भी one of the greatest gangster films of all time. True. Compared to Godfather, I think उसकी game ये है कि Godfather had a stellar cast. And it was 72. 72 was stellar cast थी. Stellar cast, director भी अच्छा. यानी it was and but how is it different? एक वो भी है कि Godfather is about a mob family. Italian mafia was a different thing. Family पूरी Godfather पूरी families और ये वो एक different scene. वो businesses कर रहे हैं, वो different चीजें कर रहे हैं. ये ट्रेन लूट रहा है खुद. और अकेला and he is also part of it. जो सबको डायरेक्ट कर रहा है. Yeah, he is the choreographer. कि वो बता रहा है कि यार ये करना. डायरेक्टर है उस और मैं यहाँ पे हूँ, खुद भी हूँ मैं. यानी कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कहीं. और भूलना नहीं है कि मैं हूँ. and I am the boss. So don't fuck with me. And so Cody Jarrett का कैरेक्टर इस तरह का है, बड़ा मजे का. और इस तरह का मतलब he is a very strong character but he has his problems. That's where the second character also comes in. Physical भी, psychological भी और psychological भी. Second character. The second character is Cody Jarrett's mom. Because Cody Jarrett, after all, is a mama's boy. He is a mama's boy.
always thinking about your Cody, aren't you? That's right. And that is a very interesting theme. I think Freud ने स्क्रिप्ट में थोड़ा सा हेल्प किया है. उसने मूवी ये देखी थी तो उसने Freud का एक्चुअली वो जो सारा आइडिया है वो इस मूवी के बाद आया है. जब इसने वाइट हीट देख के लगाया उसने कहा यार ये चीज़ है. नहीं तो he is a mama's boy. Cody Jarrett's character does not trust anyone, not even his own wife, but he will do anything his mom says. Better? Yeah. Now go on out. Show him you're all right. सारा काम उसका ये है कि his tone changes, his everything changes as soon as Exactly. when he's with his mom. He's still a little boy for her. Because his mom is of course another such a strong character. Another very strong character. और वो ये है कि she's like वो कहते हैं she's her anchor. हाँ, अब कोडी का ये था ना कि उसमें दो इश्यूज थे कि he inherited his insanity from his father. Yeah. वो दिमागी मसले थे and दूसरा ये कि he used to fake headaches when he was a kid to get his attention of his mother. But eventually those headaches become real. And वो एक scene है फिल्म में when they're like all the whole team, the wife, the mom, Cody Jarrett, they're all in a room and he gets these crazy headaches और वो बिल्कुल पागल हो रहा होता है और उसकी माँ उसको अंदर ले जाती है और उसकी माँ कहती है कि you know you should not show your weakness. People might get ideas. तो वो बेसिकली उसको एक गाइड कर रही होती है, एक तरीके से बता रही होती है कि ये करना है ये नहीं करना है. जो बचपन में आपकी कुछ टीचर्स होती है ना बड़ी अच्छी सी मामा टाइप जो आपको गाइड करती हैं, she was like sort of like that. Yeah, and she still is for him. जितना बड़ा मॉब्स्टर वो बन चुका है और वो बात असल में वो she wasn't fooling around, वो बात भी ठीक करती थी. वो बात भी ठीक करती थी exactly. और जो वो बात करती थी कोडी उस बात को मानता था तो it was a good decision. जैसे वो exactly. जाते बंदा जो पड़ा होता है अंदर जिसका मुंह सड़ा. तो जब वो I think another great scene when they are leaving this place, when they are leaving this house after the train robbery and one of the guys gets injured during the train robbery. और वो उसी की गलती की वजह से इंजर्ड हो जाता है कोडी की. कोडी वो बंदा मारता है और वो किसी कंट्रोल पे गिरता है. And he's you know wrapped in like bandages, only his like उसकी आंखें और उसका मुंह नजर आ रहा है. और वो बैग करता है कि मुझे छोड़ो ना पीछे. हाँ तो वो कहता है कि नहीं तुम बैठो और उसकी माँ कहती है कि कोडी कहता है कि डॉक्टर भेजते हैं. उसकी माँ कहती है नहीं अगर इसको पुलिस पहले पहुंच गई you know he talks. बहुत मुंह खुलता है इसका तो पुलिस से पहले अगर डॉक्टर से पहले पुलिस आ गई तो क्या होगा. तो वो you should take care of him. And then his ruthlessness comes in कि वो उसके बेस्ट फ्रेंड को भेजता है कि जाओ उसको टेक केयर ऑफ. बहुत तुम्हें शौक है ना वो तुम कह रहे हो कि इसका ख्याल रखो तो जाओ उसका ख्याल करके आओ. You meant what you said, Cody, about sending a doc? Yeah, sure. A specialist. You. Yeah, you're such a pal of his. Go back and make it easy for him. These are the two characters. और वो ये है कि it's also common. मॉम का कैरेक्टर का एक वो पुलिस को जिससे वो एक कॉमन न्यूज़ ये भी है कि चकमा देती है. He is mama's boy. तो वो एक सीन है जिसमें the mom is shopping for strawberries because Cody loves strawberries. तो एक कोई मुखबिर खबरी होता है. He sees the mom in the supermarket and he calls the sheriff's office and he says that जहाँ मामा that the mom is here so Cody must be very जहाँ close. माम था वहाँ डालता टाइप. Basically because wherever the mom is, Cody is also around. Bound to be there. So the police, that's a beautiful scene उस ज़माने का. 20 miles an hour. Suspect turning west on Calhoun. C. Proceed dead ahead. Take position on the right. Right. A. Pick her up on Calhoun. Roger. कि the police is now chasing the पुलिस mom's तो बड़ा car. अच्छा दिखाया मूवी. हाँ, the police is chasing the mom's car to get to Cody. 3 cars. 3 cars on 3 chasing parallel one car. roads. वो एक और वो फुल उनका सिस्टम है कि मैप्स भी हैं, फोन पे बात भी कर रहे हैं. You will do A, B and C type thing. हाँ, कि तुम A पे हो, वो B पे चढ़ गई है वो. And the mom, of course, she's smart, so she finds out that the police is after her and she escapes. हाँ. And she escapes, comes to the safe house and tells Cody the police is after you. Let's just run. हाँ. और तब तक पुलिस पहुंच जाती है. हाँ वो एक वो डिटेक्टिव भी थोड़ा सा इस पे मामा के कैरेक्टर में बात कर लें तो डिटेक्टिव भी जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा रीजनेबल सा कैरेक्टर था. तो मॉम्स कैरेक्टर यू गेट द आइडिया कि कोडीज एंकर जो का है तो शी वाज लाइक दैट कोडीज एंकर और ऑलमोस्ट प्रॉब्ली मोर स्ट्रॉन्गर देन कोडीज कैरेक्टर. लेकिन ये फिल्म इज अबाउट कोडी क्योंकि उसके ज्यादा सीन्स और ये वो हैं. तो डिटेक्टिव उसका जो पीछा कर रहे हैं they think they're very intelligent and of course you know the sheriff department is after him for a while. टेक्नोलॉजी बहुत है और उनको पता भी है कि ये रॉबरी इसी ने की है और इसको पकड़ लिया हमने तो गैंग खत्म. कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, कोई नहीं है इसके लिए. और वो बेसिकली जब पुलिस जब पहुंचती है सेफ हाउस पे तो कोडी जैरेट के साथ मेन शेरिफ का कन्फ्रंटेशन होती है एंड कोडी जैरेट शूट्स हिम.
Cody Jarrett shoots him and flees with the whole gang and the family. और बाद में they track the mom. He flees alone, बाकी मॉम वगैरह उधर ही होती हैं कि ठीक है पकड़ लो. फिर कोडी भाग जाता है. अब उसको कहते हैं कि कोडी कहाँ है, वो कहती है कोडी तो यहाँ था ही नहीं. मैंने तो देखा ही नहीं अर्से से. And the sheriff is like, he shot me. How could he? I told you, Cody hasn't been in California for months. I suppose he shot me all the way from another state. कोई एविडेंस नहीं है. वो कहती है कि कोडी तो था ही नहीं, तुम क्या बात कर रहे हो. तुम्हें कहती है कि मेरा टाइम से आया ना करो, you can't, I know my rights, तुम मुझे रोक नहीं सकते. And that's America. That's America, that's mama's character. That she's so strong and she knows inside out of, I mean, you know, she's basically, उसको गाइड तो उसी ने किया है ना कि मॉबस्टर बनने के लिए वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स तो उसी की है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड. टॉप ऑफ द वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस उसकी मामा उसको हमेशा से ये कहती थी, जैसे बचपन में अब बच्चों को चपेड़े मारे कहते हैं ना क्लास में फर्स्ट आना है, तो मामा इसको ये कहती थी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द एम ऑफ योर लाइफ. दैट एंड इट्स अ वेरी फेमस कोट. अगर आप किसी टॉप 10 कोट्स ऑफ ऑल टाइम में देख लें उसमें ये कोट होगा कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड मामा. तो उस पर बात होगी बाद में. अब और तीसरा कैरेक्टर सबसे इंटरेस्टिंग स्पाई जो था. Phil, look at me. College degree, lovable personality, and I spend most of my time in prison. An undercover specialist. 8 sentences in 5 years. Dannemora, Sing Sing, Leavenworth. I joined the department to put criminals behind bars, and here I am, stir crazy. Spy. I think even sheriff से ज़्यादा. Sheriff से ज़्यादा. कि the police now hires this spy, जिस बंदे का स्पाई जिसकी जिंदगी जेलों में गुजरी. हाँ, वो कहता है कि यार ये मेरी क्या लाइफ है, that I have spent most of my life. I'm a handsome guy, I'm well educated, कॉलेज डिग्री है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल जो है उसमें से 8 साल प्रिजन में गुजार दिए. वो जो क्लासिक क्या करने जा रहा है वो स्पाई कर रहा है बेसिकली पीपल हु आर इन द प्रिजन. क्लासिक वो एक है उसका कैरेक्टर पाकिस्तानी ड्रामास में मैंने देखा हुआ है कि स्पाई होते हैं प्रिजन्स के अंदर के जो खबरी है, जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनका ट्रस्ट गेन करो. हाँ, ताकि That was a bit of an interesting character. Very interesting character, and you know कि अब वो फिर ये होता है कि eventually कोडी surrenders एक तरीके से. कोडी कहता है कि यार petty crime के लिए मैं कहता है कि यार मैंने कहते हैं कि तुम लोग तो मुझे ट्रेन रॉबरी में फंसा रहे हो. I was not even in that state. मैं तो कहीं और पान का कोका लूट रहा था. हाँ, कहता है I was in another state robbing something and a very petty crime, so he goes to jail. And the spy follows him there. Yeah, to gain information, to gain his trust. और पता करने के लिए कन्फेशन ले लो उससे, या वो भागे तो उसको जो भी है, और जो भी उससे दोस्ती कर लो, उसके गैंग में आ जाओ. Eventually, you know, something. And it's not easy to gain Cody's trust because Cody does not trust anyone except his mother. हाँ, but जेल की तन्हाई में फिर you know कुछ ना कुछ वो प्लॉट के ऊपर आप फिल्म देखेंगे तो मजा आएगा. तो स्पाई वाज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो कि बड़ा क्लासिकल जो होता है कि आपने एक पुलिस का बंदा भेज दिया जेल में एक गैंगस्टर से उसकी इंफॉर्मेशन ट्रस्ट गेन करने के लिए. और बिग हेड कौन था? Big head. What a loser, man. Big Head is the biggest who thought he was smart, stooge or minion from his, and the thing is the second guy in his gang who wanted to be the boss. Great Big Ed. You know why they call him that? Because his ideas are big. Someday he's going to get a really big one. About me. It'll be his last. And the thing is, because उसमें ये है कि he does not trust anyone, so it's not like people are only working for him because they're scared. Yeah, कोई loyalty नहीं. They're scared shitless. Yeah, Godfather type films. If you watch mob families, there's loyalty. That is an entirely different thing. This is इसके अंदर वो ये है कि तुम जितना भी अच्छा काम करो मैं तुम्हें मार दूंगा. Don't cross me. Yeah. तो Big Ed was and like, for no reason, like if you piss me off, you're dead. Exactly. So Big Ed was basically somebody who was trying to be the boss, but he had a very stupid character. But Big Ed की एक interesting चीज थी that he was sleeping with Cody's wife, who was also a very dumb character. Very dumb character shown in the film, and I think उस जमाने में यही था कि female characters. वो बात है कि फिल्म में भी और बात करेंगे female character. 2021 में पाकिस्तान में भी यही है कि माँ अच्छी है, बीवी बुरी है. तो उसमें भी ये था कि माँ अच्छी है. माँ बीवी वाला डिसाइड कर लें कि माँ अच्छी है, वो बुरी है, जो भी है. तो उसमें भी ये था कि बीवी is basically, you know, she doesn't like him and you know she's after his money. Scheming. To basic pitch का word appropriate है. हाँ, basically. Very scheming, evil सा character है. और वो जो फिल्म नोआ की एक खासियत है. तो these are the characters of the film. Yeah, that's about it. And Cody Jarrett's character is the most interesting one. One of the most memorable characters of all time. Of all time, and also of all Cagney's performances. And he has done a lot of great performances. ये नहीं है कि उसने एक अच्छी फिल्म की है, उसने बेशुमार अच्छी फिल्में की हैं. And this film from 49 still is one of his. मतलब 1950 से पहले Mobster film. I don't know anyone. Yeah. White Heat ही है जिसने वो establish की है कि एक Mobster film. So yeah, that's the plot and these are the characters. When you talk about
वाइट हीट तो कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो मॉबस्टर फिल्म्स में जो इसका एक सेकंड आग लग गई घर में। ओह शिट मैन, कोडी जैरेट तो नहीं आ गए। मॉबस्टर मूवीज में तो इसका है कद काफी बड़ा, सत्यजीत रे जितना, लेकिन फिल्म नोir, दिस फिल्म फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ फिल्म नोir व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन 40s and 50s इन अमेरिका। उस जमाने की, यानी इट हैड जस्ट स्टार्टेड, हाँ कि 40s का ही है वो, मेनली 40-50s। हाँ तो ये हम कह सकते हैं कि इट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फिल्म नोir। फिल्म नोir क्या है? फिल्म नोir क्या है? मुश्किल सवाल। मतलब हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन तो लिए कोई भी नहीं है। कुछ फैक्टर्स तो कुछ फैक्टर्स हैं। आई थिंक इट्स, मैं उसको डिफाइन एज अ मूड करता हूँ। फिल्म नोir इज अ मूड इन अ वे, पेसिमिस्टिक, मतलब ये भी कहती है कि इट्स नॉट अ जॉनर, इट्स अ मूड, या कि थोड़ा पेसिमिस्टिक सा। फिल्म के कलर्स जो हैं वो थोड़े से डार्क से हैं, एंड वुमेन्स प्रॉपर प्लेसेस इन किचन नहीं, वुमेन्स रोल इज वेरी लाइक द इविल रोल, स्कीमिंग, और वो भी है कि इवन द मॉम्स रोल इज इविल। ऑफ कोर्स सो वो ये है कि दे आर ऑलवेज द फिल्म नोir के बैड इन्फ्लुएंस एंड यू नो ऑफ कोर्स मेकिंग मेन डू द बैड थिंग्स। वो यही है कि आज भी पाकिस्तान में, और मैन भी अच्छे नहीं होते उसमें, मैन भी बुरे ही होते हैं। हाँ, मैन भी बुरे ही होते हैं, लेकिन वुमेन इन्फ्लुएंस काफी उनको करती है, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स दिस बिकम्स अ परफेक्ट वो। और फिल्मों में क्राइम ही हो रहा होता है, या तो डिटेक्टिव, एंड अ वेरी अमेरिकन क्राइम, डिटेक्टिव ऑफ कोर्स, वो भी अमेरिकन क्राइम में शेरिफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डिटेक्टिव। तो डिटेक्टिव वर्क बहुत है, काफी फिल्मों में नहीं होता, लेकिन क्राइम होता है, क्राइम लाजमन होता है, क्राइम होता है, और विमेन का भी जनरली रोल जो बुरा रोल है वो भी होता है, और डार्क सी लाइटिंग, वो मूड जो होता है वो शायद पेसिमिज्म एक है कि काफी ज्यादा म्यूजिक का इतना वो नहीं होता कि वो वैसी हर चीज। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उस वक्त यूरोप में बिल्कुल डिफरेंट न्यू रियलिज्म, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 ने डेवास्टेट कर दिया था, एंड अमेरिका was entirely different. Bicycle Thieves, which year? By the 48, 49, exactly. Same year. Bicycle Thieves was a completely different film. Entirely different. And वही बात है ना कि न्यू रियलिज्म यूरोप आफ्टर द वॉर वाज स्ट्रगलिंग टू न्यू रियलिस्ट उस मूड में था। एग्जैक्टली, इट वाज ट्राइंग टू गेट बैक ऑन इट्स लेग्स, तो वो जाहिर है कि वो एक नेचुरल मूड था, छोटी स्टोरीज, एवरीडे लाइफ। दिस वाज, यू नो, फिल्म नोir वाज मोर लाइक बुकिश एक तरीके से, कि एंड अ वेरी अमेरिकन थिंग, वेरी probably one of the best things that American cinema gave. एंड ऑफ कोर्स अभी भी फिल्म नोir है एंड पूरी दुनिया में है, जैसे इवन ब्लेड रनर अभी भी रिसेंट है, लेकिन क्लासिक 40s 50s वाला वो स्टार्टिंग तो फिर वही था ना, एरा जो था, तो उसमें विमेन आर जनरली इविल, तो और क्राइम इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। मूड जो उसकी लाइटिंग है, इट्स अ डार्क, डल सा, थोड़ा सा डार्क एंड पेसिमिस्ट, और उसमें डिटेक्टिव का भी, डिटेक्टिव बाज मूवीज में द प्रोटैगनिस्ट इज नॉट डिटेक्टिव, जैसे वाइट हीट में बाज मूवी बॉगर्ट ने भी फिल्म हुआ की है, ही वाज अ डिटेक्टिव एंड ही वाज अ हीरो, तो नहीं, बिकॉज़ फिल्म में हीरो एंटी हीरो, तो ये है, तो दीस आर आई थिंक द मेन। और फिल्म हुआ, लेकिन स्टार्ट किसने, अमेरिकन तो नहीं किया था, फिर स्लैंग भी एक होता था, वो लेके आया ना अमेरिका, उसने कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये करो। फिल्म नोir का स्टार्ट जो है उसमें एम जरूर देखें, आई थिंक 30 और देयर अबाउट्स की है, फिर स्लैंग जो बाद में अमेरिका ही आ गया था, अमेरिका जर्मन, या तो ही बेसिकली किक स्टार्टेड दिस होल थिंग। आई थिंक वो वैसी पेसिमिज्म डॉक्टर मेब्यूज, मेट्रोपोलिस, पेसिमिज्म की एक वो थी कि जर्मन सिनेमा वाज मच अहेड, अलग ही वो लेवल के ऊपर बात कर रहे थे। बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 जर्मन सिनेमा बहुत आगे था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो वो जर्मन फिर स्लैंग भी अमेरिका में आ गया था, और काफी और लोग भी आ गए थे, एंड दे इंट्रोड्यूस इन्फ्लुएंस के यार आपके पास इतना है तो इस पे काम करो, तुम ये क्या म्यूजिकल बना रहे हो। एग्जैक्टली, और उस जमाने में यही था कि अमेरिकन एक वो है ना कि इवन 1910 के बाद से ही उनकी लाइफ एक बिल्कुल ही डिफरेंट थी पूरी दुनिया में। अमेरिका इंडस्ट्रियलाइज हो गया था, हाँ, और वॉर ने भी डेवास्टेट उसको नहीं किया था, उनके प्रॉब्लम्स अलग थे, उनके प्रॉब्लम इस तरह के थे, अर्बन लाइफ बहुत स्ट्रांग हो गई थी, एग्जैक्टली, और अर्बन लाइफ में जब मिडिल क्लास जब बढ़ रही होती है तो सिटी में क्राइम्स भी आते हैं, एंड यू नीड डिटेक्टिव है, तो गैंगस्टर तो पहले ही आ जाते हैं, तो इट वाज बोथ दैट फिल्म नोir। सो या दैट्स फिल्म नोir। इस फिल्म में एक और बड़ी मजे की चीज है जो 40s 50s की फिल्मों में हर फिल्म पे एप्लीकेबल थी, सेंसरशिप के ऊपर। thank you for reminding that, because that's important. So I mean of course censorship आज भी है, काफी मुल्कों में ज्यादा है, काफी मुल्कों में कम है, हमारे यहाँ अच्छी बात है कि एक कॉमन क्वालिटी के, इट्स क्वाइट फनी, या जो आप सेंसरशिप के जो एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट जो होती है ना, लॉज या रूल्स, उनको पढ़े तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। जैसे वो कौन सा था, वो बेड वाला,
तो वो Hays Code yeah. was basically the document which was followed in Hollywood कि जी ये censorship ये चीज़ आप नहीं कर सकते and उसमें एक तो ये था कि bad characters will always either be defeated या bad characters का अंजाम bad ही होगा. let's say आप ड्रग एडिक्ट हैं कोप करते हैं तो आपका अंजाम बुरा ही होगा. या इस मूवी के लिहाज से आप गैंगस्टर हैं बुरे कैरेक्टर हैं तो आप जेल जाएंगे या आप मारे जाएंगे या कुछ ना कुछ आपके साथ होगा. और ये आपने फिल्म में दिखाना है. Exactly. So people are not inspired because people know कि karma bites you in the ass basically. हाँ. और बड़ी मजे की है कि Hays Code के अंदर जो एक और वो है वो ये कि एक सेक्स सीन नहीं दिखा सकते. हाँ. और उसमें ये कि दिखाना कहाँ तक अलाउड है वो ये है कि इफ अ कपल ऑफ कोर्स हम सेम जेंडर की तो बात भी नहीं कर सकते और अनमैरिड की भी बात नहीं कर सकते. निकाह हुआ है मैरिड कपल जिनका निकाह हुआ है if you show a married couple sleeping together not even sleeping just in bed exactly just in bed तो औरत का एक पैर जमीन पे होना चाहिए which shows that no sexual no hanky panky no intimacy and that was quite intelligent कि एक पैर आपने रख दिया तो फिर आप कोई ज्यादा हैंकी पैंकी इन टर्म्स ऑफ सेक्स तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते. हाँ, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. और सेक्स का वर्ड प्रॉब्ली अलाउड ही नहीं था उसमें. अलाउड भी नहीं था. और वो बड़ी मजे की है द बाइसाइकिल थीव्स व्हेन इट वाज रिलीज्ड इन अमेरिका. तो उसके अंदर एक ब्रोथल का सीन है जो कि कुछ भी नहीं है. उस जस्ट ब्रोथल वर्ड वो भी उनने सेंसर और उससे मजे की बात बच्चा बेचारा सड़क पे सुसु कर रहा है कि वो और वो बड़ा मजे का सीन है फिल्म के अंदर. बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है. और वेजेस ऑफ फियर भी हमने डिस्कस की है उसको भी काट दिया. तो सेंसरशिप वाज वेरी स्ट्रांग इन अमेरिका. And Hays Code basically बड़ा मजे का था क्योंकि any films we discuss right now were all went through the Hays Code victims of Hays Code. और फिर क्या हुआ जब Hays Code खत्म हुआ है around about 66-67 में. और उसके खत्म होते ही अगले साल जो मूवी ऑस्कर जीती है एंड वाज एन अमेजिंग मिडनाइट कॉबॉय डस्टिन हॉफमैन और दूसरा क्या था या उसमें क्या था उसमें सब कुछ था. उसमें हर वो चीज थी जो Hays Code में मना की. इट वाज क्वाइट शॉकिंग बट इट वाज एन अमेजिंग फिल्म. और अगले साल ही वो ऑस्कर जीती Hays Code खत्म होते ही. तो वो इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर हॉलीवुड लेट 60s बिकॉज़ काउंटर कल्चर और ये वो भी चल रहा था. तो ये है आई थिंक ये फिल्म नोआ की भी सारी फिल्में उस अमेरिका के अंदर वो जो Hays Code का टाइम था वो बड़ा मजे का था कि जिसके अंदर आप ये भी देखते हैं कि यार सेंसरशिप के होते हुए व्हाट कैन यू डू एग्जैक्टली कि आप क्या दिखा सकते हैं क्या नहीं दिखा सकते. वो भी एक क्रिएटिविटी है. वो आपको रिस्ट्रिक्ट करके यू बिकम मोर क्रिएटिव. लाइक ईरान की हम बात करते हैं नॉट अस क्रिएटिव पीपल. आई थिंक अभी इस वक्त भी पिछले 20-30 सालों में स्पेशली ईरान पैरेलल सिनेमा इज फैंटास्टिक. बात के रुस्तमी की हम करेंगे किसी दिन उस पे फिल्म. लेकिन उनका जो सिनेमा है वो बड़ा क्रेजी है डिस्पाइट ऑल द रिस्ट्रिक्शंस दे हैव. हमारा टीवी अमेजिंग है लेकिन सिनेमा में उनका मुकाबला नहीं है. एंड सच सिंपलिसिटी एंड स्मॉल स्टोरीज वो ये है कि न्यू रियलिज्म एक्चुअली वहां पे एक तो फिर वो दे रिजॉर्ट टू सिंबोलिज्म जिसमें नॉट वो बॉलीवुड नहीं कि दो फूल आपस में आके किसिंग वो जो बॉलीवुड का एक चक्कर था बट वेरी सिंबॉलिक एंड वेरी इंटेलिजेंट एंड बिकॉज एंड वो इतना इंटेलिजेंट है कि सेंसर बोर्ड भी कहता है कि अच्छा है क्योंकि योर स्टेट हैज फोर्स्ड यू कि आपके पास इतनी सी स्पेस है इसमें कर लें तो फिर आप इंटेलिजेंट वेस्ट यू हैव टू अदर या तो फिल्म ना बनाएं और अगर बनानी है तो इसमें बनाएं सो पीपल हु वांट टू मेक फिल्म्स विल. तो फिल्म नोआ को जरूर डिस्कस करें. वाइट हीट नॉट जस्ट फिल्म नोआ बल्कि मॉबस्टर मूवीज के भी पॉइनियर में के लिहाज से इसको देखें. डबल इंटेम्प्टी एम को देखें. एम को तो एम इज बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट. एम इज बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट. और फिर लैंग जो डायरेक्टर था एम का ही वाज लाइक अ गॉड ऑफ वन ऑफ द गॉड्स ऑफ सिनेमा. और डबल इंडेम्प्टी देखें बोगार्ट की एक दो देख लें माल्टीज फैल्कन ये वो बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉनरा एंड इट्स एंटरटेनमेंट जॉनरा वेरी एंटरटेनिंग क्योंकि इट्स अबाउट एंटरटेनमेंट है वो बेसिकली एंटरटेनमेंट क्योंकि अमेरिका के अंदर ऑलरेडी फिल्म्स म्यूजिकल्स बन रहे थे. पीपल वेंट टू वॉच फिल्म्स फॉर एंटरटेनमेंट और इसमें फिल्म एक्शन भी हो रहा है हर चीज हो रहा है एवरीथिंग है. तो इस जॉनरा को डिस्कवर करें एंड हैव अ नाइस टाइम एंड गुड नाइट एंड लाइक